और बहुत इस बात से मैं सहमत हूं कि कुछ लोग इसको इस तरह से दिखाना चाहे कि ये फिल्म मुस्लिम के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ है। हमें तो ऐसा कहीं लगा ही नहीं। मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं जिनके साथ में फिल्म देखा। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Ladies and gentlemen, good evening to all of you. I want to start with a little sad note today because we have experienced a very serious railway mishap and by Coromandel Express. So I just want 30 seconds condolence. Please stand up on your seat and pay condolence to the victims. Thank you very much. I think this is one of those very, very important moments in our lives when Respect India has organized this program which is extremely sensitive. और इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं हमारे बीच में one of the finest directors India has made. Very simple, extremely cerebral in his creative power, Mr. Sudipto Sen. I think give it a big hand. वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, मनोज तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, वो भी एक सेल्फ मेड, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में एग्जेम्पलरी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान इस युवा अवस्था में किया है। वेरी प्राउड ऑफ यू मनोज जी यहाँ पर हैं। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं समझता हूँ इस फिल्म को बनाने के एक बहुत बड़ा कलेजा थी, बिकॉज मेकिंग ए फिल्म ऑन सच ए सोशली सेंसिटिव फिल्म इट्स ए कमर्शियल वेंचर and you don't want to take risk which is experimental movie in nature, which is driven out of conviction, which is driven out of the factuals which is happening in our country, and it has been simmering like a bomb and nobody has dared to come forward to make a film. So Sudipto and Vipul Shah, you deserve very, very high degree of congratulations for daring to make a film like Kerala Story. Extremely daring. Today you sweat. I mean, by the time you talk about these lines, you have seen in the past how the backlash happened because certain statement was made by certain spokesperson and the backlash was humongous. In this background, somebody is coming out with a film, Kerala Story, and this is the second film, second highest grosser. I think today it's a very good day. It has almost crossed 231.75 crores. Am I right, Sudipta Dada? But I think it will cross. Unfortunately, this movie was not allowed a full blossom release because of the shadow ban in Tamil Nadu and in West Bengal. If you count this loss in the box office, it would have crossed threshold of 250 crores. Now, if you have seen, the Bollywood has been taking a backlash because the South movies had taken over. And we are very proud that this movie is a flag bearer of the commercial success of Bollywood. Thank you, sir. I can go on and go on because I'm pretty aware about Kerala's stories, how this film was made after 4 years of intensive research on the victims. There has been a controversy of versus 32,000 victims, but I think there is a study done. 50,000 victims have disappeared and God knows where have they gone. Some of them got recruited in ISIS or some of them are still in the process of conversion. So this atrocity basically has opened up the secret of this kind of a blueprint which
is balkanizing the country, which is anti-national, and this conversion has been going on under the garb of fundamental rights of right to expression, right to religion. But anybody who behaves against the country is number one enemy. It doesn't matter which religion he belongs to. So it is not communal at all. It is basically highlighting the anti-India. जो राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा, मैं समझता हूं कि वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो चाहे किसी भी मजहब से। और ये जो फिल्म में दर्शाया गया, मैंने फिल्म देखी और मैं समझता हूं कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब मैं फिल्म देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग विद माई वाइफ सुमन, शी इज हियर। तो फिल्म इतनी सेंसिटिव है और इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया। देखिए, बहुत टफ फिल्म है। It's a very tough film because raising issues, bringing to the level of the audience is a challenge in itself. I think it's a creative marvel which has reached out to the audience, and today it is a blockbuster. So congratulations again to you, Sudipta Dada, for making such a great film. Today, unfortunately, Vipul Shah is not here, but before that I'll talk about Manish Chaudhary's initiative, Respect India, whose president is here. And Mr. Nirmal Gehlot. Respect India is basically a very, very sensitive social organization which was formed in 2007 by bureaucrats, intellectuals of the country, social activists, public personalities, and they have been relentlessly working. कोरोना काल में इन्होंने जैसे ऑक्सीजन ब्रीदर्स लगाए, इन्होंने विमेन सशक्तिकरण पे काम किया, तमाम ऐसे देश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं जिससे हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो मैं आपका और मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि रेस्पेक्ट इंडिया ने आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। नाउ अनफॉर्चुनेटली विपुल शाह, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एंड अदा शर्मा, हु इज द लीडिंग हीरोइन ऑफ द फिल्म, Shalini Unnikrishnan, you must have heard the way she spoke in a Keralite accent, very authentic. एंड तो वो दोनों आज नहीं आ पाए हैं उसके लिए, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो मैसेजेस भेजे हैं। आई वुड लाइक यू टू प्ले द वीडियो मैसेजेस ऑफ विपुल शाह एंड अदा शाह। Good evening, everybody. I sincerely thank Respect India for celebrating the Kerala story. It's been one of the most challenging and yet the most satisfying experience of filmmaking of my career. I mean, I've made lots of commercial films which include Namaste London and Sing is King and Commando franchise and Holiday and Aankhein, many Force series. But this has been a special, a very difficult one, but a very, very special one for all of us. It's not a film, it's a social movement, and we were very keen that the whole country watches this film and we never let this issue die. So we are very, very satisfied that crores and crores of people are already watching this film, talking about it. And Respect India, thank you very much for felicitating and celebrating the success of the Kerala story. I think we need to give a big hand to Vipul Shah, who is a legendary filmmaker, and I think he has been entertaining us. His initial first film with Akshay Kumar, and he started as a director with a Gujarati film. He has adapted many Gujarati films. Vipul Amrit Shah has been continuously entertaining with his directional capabilities as a producer, and he ventured into this film. I think deserves, and we need to, as a matter of fact, encourage such producers who come out with the thematic films which brings about the change in our country, which brings about the positive change in the country. And what is happening is the commercial strings to the cinema. उन्होंने हमारे जो अच्छे पहले 1947 के बाद हमने देखा राष्ट्रीयता से भरी हुई पिक्चरें आती थी, मदर इंडिया, तमाम ऐसी पिक्चरें हैं जिसमें कि हिंदुस्तान के लिए हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन बीच में ऐसा चलन आया कि वो फिल्में बननी कम हो गई और कमर्शियल फिल्म ज्यादा बन गई। तो मैं समझता हूँ हम विपुल शाह के लिए हमें बहुत जोरदार तालियों से उनका खैर मकदम और स्वागत करना चाहिए। Now I would like you to play Ada Sharma's नहीं है, दोनों की तबीयत बहुत खराब है, and he wanted to come. He was very serious. My apologies on their behalf, but I think Sudeep, with his extraordinary capabilities, will hold the show.
He is the bridegroom of the evening today. Now I would request all the guests of honor to come on stage and do the lighting of the lamp. मनोज तिवारी साहब आप आइए प्लीज. सुदीप्तो दादा प्लीज आप आइए. सर मनीष. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री सच्चिदानंद जोशी जी से, आज के इस कार्यक्रम के कीनोट एड्रेस श्री अनंत विजय जी से कि कृपया वो मंच पे आए. Though this movie got the adult certification, but kids are very excited and they want to. Arav and Arjun will do Shiv Stuti. So, come. हर 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 महादेव, हर 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 महादेव. शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव. हर 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 महादेव, हर 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 महादेव. शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव. हर 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 महादेव, हर 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 महादेव. परमेश्वर अखिलेश्वर, परमेश्वर अखिलेश्वर, परमेश्वर अखिलेश्वर, परमेश्वर अखिलेश्वर. तांडव प्रिय शशिशेश्वर, तांडव प्रिय शशिशेश्वर. हर 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 महादेव, हर 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 महादेव. शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव. हर 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 महादेव, हर 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 महादेव. विश्वधार विश्वनाथ, विश्वधार विश्वनाथ, विश्वधार विश्वनाथ, विश्वधार विश्वनाथ. गंगाधर धीरनाथ, गंगाधर धीरनाथ. हर 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 महादेव, हर 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 महादेव. शिव शंकर आदिदेव, शिव शंकर आदिदेव.
हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव 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 Mr. the President of Respect India, Nirmal Gehlot ji, who is known for spreading education across country. उनका इंस्टीट्यूशन है उत्कर्ष क्लासेस जो कि जोधपुर में है और दिल्ली इलाहाबाद एंड ही वाज द वन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप प्री बैंक ड्यूरिंग द कोरोना टाइम एंड ही डिस्ट्रीब्यूट 500 now it has reached to 5,000 oxygen concentrators. So we need to give him a big hand, who is the man behind it. Please requesting Mr. Nirmal Gehlot to come and give a speech. Acha, Nirmal ji is saying that we need to give a bouquet to all the guests. Okay. आइए ठीक बुके ले आइए भाई विवेक जी आप भी अपना ले आइए इधर डॉक्टर विवेक चौधरी इज विद अस ही इज president of Ecoli Superior de Sorbonne who gives doctorate honorary doctorate from French institution. He has brought some hamper for our guest. अब मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रेसिडेंट श्री निर्मल गहलोत जी से कि आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज तिवारी जी का अभिनंदन करें। अब मैं आज के संचालक श्री मुकेश तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री सच्चिदानंद जोशी जी का स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री आलोक रंजन जी से कि वो मंच पे आए और आज के इस कार्यक्रम के हीरो, हम सबके चहेते, हम सबके एक आइडियल आइकॉन श्री सुदीप्तो राय का स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा गुरुदत्त रंगा जी से कि वो आकर हमारे बीच आदरणीय श्री अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री गुरुदत्त रंगा जी। आदरणीय श्री रंजन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आए और आज के इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता आदरणीय श्री मुकेश त्यागी जी का स्वागत करें। अब मैं आशुतोष से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी गहलोत का स्वागत करें।
अब मैं आदरणीय श्री निर्मल जी गहलोत से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और आज अपना स्वागत वक्तव्य दें। सबसे पहले एक बार जोरदार हाथ खोल के तालियां हो जाए, लगे कि हाँ आज हम आए हैं केरला स्टोरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम के जो मुख्य हीरो हैं, बेसिकली फिल्म के डायरेक्टर जो होते हैं वो हीरो बनाने वाले होते हैं, तो खुद ही बड़े हीरो होते हैं, हीरो ही हीरो को क्रिएट करते हैं। तो ऐसे श्री सुदीप्तो सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। आज इस सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री सच्चिदानंद जी जोशी जी, आपका मार्गदर्शन हमेशा रहता है हमारे रेस्पेक्ट इंडिया को, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। आनंद विजय जी, अश्विन शाह जी, अनूप लाठर जी, कार्यक्रम के उद्घोषक जो हैं मुकेश त्यागी जी, और आप सभी सामने विराजमान सारे डिग्निटीज, अतिथिगण, केरला स्टोरी को चाहने वाले लोग, रेस्पेक्ट इंडिया को चाहने वाले लोग, सुदीप्तो सेन जी को पर्सनली चाहने वाले लोग। तो मैंने इस मूवी के बारे में काफी कुछ सुना और जोधपुर से मुझे आज आना था इस प्रोग्राम के लिए। रेस्पेक्ट इंडिया हमारा प्रोग्राम करा रहे हैं, उसका नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते दायित्व बनता है कि प्रोग्राम में मैं रहूं, लेकिन उससे एक बड़ा दायित्व था कि फिल्म के बारे में, मूवी के बारे में केवल सुना है तो उसके पहले मैं देख लूं। तो बस जल्दबाजी में पूरा शो देखा है मैंने। कल रात को 10 बजे जोधपुर में मैं थिएटर में गया, मैं और दोस्त साथ में, पहले पूरी मूवी देख के आए, भाई देख लें अच्छे से पहले, और उसके बाद उसके बारे में कोई चर्चा होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी, मतलब मार्वलस मूवी बनाई हमने। इसकी कंट्रोवर्सी भी, जैसे त्यागी जी ने बोला भी कि कंट्रोवर्सी भी लेके, कुछ लोग उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा भी है, 3 जनों की स्टोरी है, उसको लेके 3600 की स्टोरी बता रहे हैं या 36,000 की बता रहे हैं, लाइक दिस। लेकिन जाके आप देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये शहर में, जिले में, गांव में, ये केवल केरला की प्रॉब्लम नहीं है। जो कन्वर्जन जो हो रहा है, जिस प्रकार की ये प्रॉब्लम है, समस्या है, जिसको ट्रैप किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, ये ऑलमोस्ट सब जगह की कहानी धीरे धीरे बन चुकी है। तो ऐसी कहानी को उजागर करने का जो बीड़ा उठाया अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप, एक लीडर स्टेप जो है, ऐसा सुदीप्तो जी ने और उसकी पूरी टीम ने उठाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं कहूंगा कि काश्मीर फिल्म के बाद में वापस कोई ऐसी मूवी आई है जो जनता चला रही है, मतलब ग्रुप में लोग जा रहे हैं। राजस्थान का एक छोटा सा गांव है जिसमें लिटरेसी रेट सबसे कम है, वहां पे अभी हाल ही में नया मॉल बना है, पहला सिनेमा हॉल वहां पे खुला है। मैं 10 दिन पहले वहां पे गया, जालोर की मैं घटना बता रहा हूँ। और मल्टीप्लेक्स वहां पे 3 थिएटर वहां पर है, तो 3 स्क्रीन पूरी, सब में यही केरला स्टोरी मूवी उसकी लगा रखी, एकदम वो पैक चल रहा है। और लोग जो समाज सेवी है ना, वो जा के बच्चों को उस मूवी को दिखा रहे हैं मास लेवल पे। तो कई जगहों पे आपने देखा ही होगा। तो इस प्रकार की एक फिल्म जो मुहिम बन चुकी है, ऐसी फिल्म के डायरेक्टर, उनकी टीम, उनका जन सम्मान करने के लिए रेस्पेक्ट इंडिया की तरफ से आपके बीच में उपस्थित है। बहुत अच्छा लग रहा है। सारे मंचासीन लोग जो हैं उसके बारे में अच्छे से प्रकाश डालेंगे। मैं एक बार फिर रेस्पेक्ट इंडिया के अध्यक्ष के नाते आप सभी का और मंचासीन अतिथि गणों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच निर्मल जी, आपने बहुत कम शब्दों में काफी बातें कही और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझ रहा हूं कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस इंटायर इवनिंग विल बी इफ वी हैव सम क्वालिटेटिव डिस्कशन with the director Sudipto Singh ji, because he is the man who has made this film with conviction and made a commercial success. तो इसमें कुछ सवाल मनोज जी को मैं नहीं, आप मनोज जी 1 मिनट पहले आप आ जाइए, सुनी फिर आप पहले, फिर उसके बाद एक इंटरेक्टिव सेशन कर लेते हैं प्लीज। मैं मनोज तिवारी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो बगल में बैठे हैं, पूछ लीजिए। 1 मिनट आप आकर के बोल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 2 मिनट मैं समझता हूँ जितने भी हमारे अतिथिगण हैं 2 मिनट आकर के मंच पे बोलते प्लीज। ये खुद भी अभिनेता हैं, सिंगर हैं, पता नहीं कितने हैट्स पहनते हैं हमारे मनोज भाई हैं, क्रिकेटर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत।
बेसिकली इस समय मैं खड़ा हूं तो मेरे अंदर का जो एक्टर है, मेरे अंदर का जो राइटर है और मेरे अंदर का जो डायरेक्टर है, उसी दृष्टि से मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूं। और जब उस दृष्टि से देख रहा हूं तो अब मैंने भी 98 फिल्में की हैं। फिल्में की, लेकिन जब केरल स्टोरी देखा तो लगा सब बेकार थी। क्योंकि हो सकता है उसमें बहुत सारी इंटरटेनमेंट तो बहुत सारी थी, तो हम जब केरल स्टोरी के एंगल से देखे तब मुझे लगा कि अभी तक तो फिल्म किया ही नहीं, अभी तक तो स्टोरी लिखा ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि सुदीप्तो दा को तो हम एक दिन मिले थे, एक दिन क्या कई बार मिले। फिर मैं ठीक से नाम पढ़ा कि हाँ ये तो वही है ना डायरेक्टर। कुछ दिन पहले हम लोग यूनिवर्सिटी में एक उड़ान कार्यक्रम शुरू किए थे। वो हर साल चलता है कि जिन बच्चों को उनके अंदर एक्टर है, नुक्कड़ का है, ये सब उसको उभारने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। उसमें भी ये आकर के लोगों को गाइड किए थे। तो इस नाते से ये केरल स्टोरी, जैसा मुकेश त्यागी जी ने कहा, अब ये मात्र फिल्म नहीं रह गई है। ये फिल्म न जाने कितने फिल्मों को ऐसे जन्म देगी जो इस देश को देखना चाहिए, जो बनना चाहिए था मगर नहीं बना। जैसे स्क्रिप्ट लिखी जानी थी लेकिन नहीं लिखी गई। और बहुत इस बात से मैं सहमत हूं कि कुछ लोग इसको इस तरह से दिखाना चाहे कि ये फिल्म मुस्लिम के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ है। हमें तो ऐसा कहीं लगा ही नहीं। मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं जिनके साथ में फिल्म देखा। मैं 6 शो देख चुका। एक बार तो फिल्म देखने के लिए देखा और 4 बार फिल्म दिखाने के लिए देखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलेज के, बहुत सारे हमारे क्षेत्र के लोग बोलने लगे कि हम कुछ पूछे, बोलो आपकी खुशी के लिए क्या करें, तो मैक्सिमम लोग बोले मुझे केरल स्टोरी दिखा दो। तो 4 बार तो पूरी हॉल बुक कर करके देखी और फिर एक बार और देखा। ये वापस ये जब बहुत सारा ये शोर हो गया, जितना मैं समझता था मुझे लगा यार जैसा मैं सोचता था ना वैसे ही देश सोचने लगा। क्योंकि देखिए फिल्म बनाना और फिल्म विंडो खिड़की पे सफल हो जाना दोनों दो बातें हैं। उस लिहाज से जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो देश का मिजाज भी दिखता है। और कितना, एक लाइन आपने बहुत अच्छी कही कि उसको ऑडियंस के लेवल पे रख देना बड़ी बात है। वहीं से डायरेक्टर बहुत बड़ा हो जाता है, जो सुदीप्तो दा हुए हैं। तो आज वो हम लोगों के सामने है। मैं भी जानता हूं कि उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत होगा, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी। मेरे पास भी 3-4 प्रोड्यूसर आ चुके हैं। आप जानते हैं क्या सुदीप्तो सेन को? हमने कहा जानते तो हैं, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वो जिस तरह के व्यक्ति हैं, वो एक फिल्म सफल होने के बाद ना उसका एक्टर, उसका डायरेक्टर, वो 2 तरह की सिचुएशन होती है। या तो अगला तुरंत 10 फिल्म और साइन कर लिया और नहीं कह दिया प्लीज वेट, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। तो सुदीप्तो सेन वही है, प्लीज वेट। क्योंकि जब ये दूसरी जो भी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनकी हर कृति ऐसे ही हो जो भारत को जगाए भी, और जो सिनेमा करने के लिए बैठते हैं, जिनके मन में कुंठा होती है, जिनकी सिनेमा के पीछे की सोच बड़ी
नकारात्मक होती है उन लोगों को शायद जगाए भी। तो इस आशा के साथ मैं सुदीप्तो दा को बहुत बधाई देता हूं। मैंने अब क्या बताऊं, तो मोटा मोटी तो सबको देख ही लिए जो फिल्म बनाते थे, सोचते थे आज भी मिलते हैं, बैठते हैं, देख ही रहे हैं। लेकिन सुदीप्तो सेनदा, आपको इस फिल्म के लिए बार बार प्रणाम करता हूं। मनोज तिवारी जी ने 4 बार फिल्म, अभी लगता है 40 बार और दिखवाएंगे सब लोगों को जिन्होंने नहीं देखी है। सर आपको 30-40 शो और करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं समझता हूँ सुदीप्तो सेन साहब के लिए मैं 5 मिनट का इंट्रैक्शन करूंगा, उसके बाद हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो इसको अपने अंदाज में बताएंगे, और 5 मिनट अगर किसी को 2 या 3 सवाल कोई, वो मनीष जी डिसाइड कर लेंगे किसको करने हैं, और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स बैठे हैं दे कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन। सो सुदीप्तो जी, इंस्टेड ऑफ योर स्पीच वी वुड रादर लाइक टू गेट इनटू द इनसाइट्स ऑफ दिस फिल्म मेकिंग। As far as I know, he has done a great amount of research. तो ये आपका फिल्म का आइडिया कैसे आया और कैसे इस लेवल का कन्विक्शन आया कि आप इस माहौल में ऐसी फिल्म, क्रांतिकारी फिल्म लेके आए? तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा आप प्लीज आइडिया दीजिए। आप बोलिए जितना बोलना है, महफिल आपकी। ये फिल्म की जो नींव था, अच्छा मेरा बंगाली होने का एक फायदा है कि मुझे कोई भाषा में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा में बात कर सकता हूँ। बंगालियों की लैंग्वेज में इतना छुटकारा दिया जाता है, तो इसलिए आई विल बी टॉकिंग इन मिक्स्ड हिंदी एज वेल एज आई एम ए हिंदी फिल्म मेकर, सो आई शुड बी स्पीकिंग इन हिंदी, बट एज अ बंगाली आई विल टेक द प्रिविलेज। 2014 में मैं केरल में था। एक्चुअली 2009 में मैं एक मलयालम लैंग्वेज की फिल्म बनाए थे, उसका नाम था अत्तिपोनवेट्टम। तो तब से मेरा केरल जाना आना शुरू हो जाता था, और केरल के बारे में वो गॉड्स ओन कंट्री और जितने भी एडजेक्टिव केरल के बारे में बोला गया, मैं एकदम बारीकी से उसकी आनंद लेता था। मैं बार बार केरल जाता था। 2014 में मैं त्रिवेंद्रम में था। एक घटना मुझे बिल्कुल अंदर से बहुत ज्यादा झिंझोड़ के रख दिया था। वो था, एक लड़की थी, मैं उस लड़की का नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो अभी सदमा से, उसकी जो ट्रॉमा के थ्रू जो जा रहे थे, ट्रॉमा से बाहर निकली है। वो लड़की 19 साल उम्र थी उसकी, और वो लड़की एक मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की एक शिकार थे। उसकी कंप्लीट ब्रेन वॉशिंग हो चुका था, कंप्लीट इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस खत्म हुआ था, और शी गॉट मैरिड टू अ मैन। आफ्टर द मैरिज और द सेकेंड डे शी रियलाइज्ड उसकी पासपोर्ट और वीजा बन चुके थे सीरिया ले जाने के लिए कोलंबो के रास्ते से। तो वो लड़की बहुत साहसी थी, तो वो लड़की वहां से भागी और घर वापस आए 4th या 5वां दिन शादी की। और लेकिन वो 19 साल की लड़की थी, ये खबर मीडिया में चले गए थे। मीडिया भयंकर उस लड़की को चेस कर रहे थे। पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक बहुत बड़ा एक सोशल इशू की केंद्र बिंदु बन चुके थे। सो द ट्रॉमा वाज अनबियरेबल फॉर हर एज वेल एज हर पेरेंट्स। सो दे डिसाइडेड टू गो बैक टू हर नेटिव प्लेस विच इज कासरगोड। कासरगोड है एक्सट्रीम नॉर्थ, केरला की सबसे नॉर्थ की जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कर्नाटका की मैंगलोर के साथ जुड़े हुए हैं, उसका नाम है कासरगोड। कासरगोड शहर से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में उस लड़की की घर थी। तो शाम को एक दिन उसके माँ बाप के साथ वो कासरगोड के लिए ट्रेन लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सुबह कासरगोड पहुंचती है। तो जब 70 किलोमीटर दूर सुबह घर पहुंचती है, देखते हैं नाइट बिफोर उसके घर को जला दिया गया और पूरे घर एकदम मिट्टी में मिल गए थे। ये घटना मुझे बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा झिंझोड़ के रख दिया था, बिकॉज आई कुड इमेजिन दैट व्हाट दैट गर्ल गॉन थ्रू। उसके बाद मैं इस सब्जेक्ट को, इस लड़की की जो जर्नी थी, उसकी जो इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस था, उसको उस समय से ही फॉलो करना शुरू किए। मुझे कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद मिली, और 2016 में
मैं 10-12 लड़की जो कोची शहर के बाहर एक जगह पे एक छोटे से फ्लैट में रहती थी, ये सब मैनिपुलेटिव कन्वर्शन से लास्ट मोमेंट पे इन लोगों को वापस लाया गया और ये लोग अपने घर नहीं जा सकते थे, अपने काम में नहीं जा सकते थे, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते थे, इनको सोशल बॉयकॉट हो चुका था। तो एक तरफ से ये लोग कंप्लीटली आइसोलेशन में चले गए थे और इन लड़कियों की एक फ्लैट लेके रह रहे थे जिस फ्लैट में बिजली काट दिया गया था। और सुबह ये लोग सब्जी लेने के लिए मार्केट जाते थे, जब मार्केट से वापस आते थे उनकी सब्जियों की बैग रास्ते में छीन लिया जाता था। और जिस दिन मैं पहुंचा था उनके घर पे, 3 दिन से उन 12 लड़कियों ने खाना नहीं खाए थे। तो आपको समझ में आएगा कि मैं अभी गुज़बाम्प होते हैं मुझे आज भी उन लड़कियों को बारे में सोचते हुए। आज वो लड़की केरल की रास्ते में बाहर आके हमारी फिल्म की जिस दिन केरल में रिलीज हुई, उसके बाद वो लड़कियां अभी हमारी फिल्म की एम्बेसडर बन चुके हैं। वो लोग रास्तों में जाके लोगों के साथ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये फिल्म की एक एक फ्रेम को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो बेसिकली ये जो फिल्म की जर्नी था वो 2014 से शुरू हुई थी और मैं 2018 में एक्चुअली पहले मुझे ये कन्वर्शन लगता था। सिर्फ जब कन्वर्शन होते हैं ना तो वो कानून कुछ नहीं कर सकते। तो एडल्ट अगर शादी करने की तैयारी करे या धर्म परिवर्तन की बात करे तो हमारे देश के कानून कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ये भी बहुत ही एक हार्मलेस कन्वर्शन लगता था। लेकिन जब वो इंडोक्ट्रिनेशन की प्रोसेस मैंने फॉलो करना शुरू की, जब मुझे पता चला कि कैसे सऊदी अरबिया से ड्रग आके पहुंचते हैं, एम्फेटामिन, कैप्टागन जैसे ड्रग की ट्रेसेस मुझे मिला। और एक एक लड़की से खबर में ऐसे मिलता रहा, जब इंडोक्ट्रिनेशन की लास्ट स्टेज में पहुंचते थे, दिन में 4 बार उनकी सिम कार्ड बदल दिया जाता था। जो वो अपने घर से अगर कॉलेज जाएंगे तो 2 गाड़ी बदल के जाना पड़ता था। ये जो एक पैटर्न आना लगा तो मुझे लगा कि ये सिंपल कन्वर्शन नहीं है। उसके बाद मुझे यूरोप से जब आईसीस में लोग लड़कियां ज्वाइन कर रही थी, यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से बड़े संख्या में ये लोग ज्वाइन कर रहे थे, उनकी पैटर्न को मैं स्टडी करना शुरू की। फिर 2018 में जब जो मेरी फिल्म की लीड एक्टर है, उसका नाम रियल नाम हम लोगों ने बोले नहीं, वो शालिनी उन्नीकृष्णन जो नाम है, वो लड़की तब तक अफगानिस्तान की जेल में जा चुकी थी। उस समय पे आज भी वो और केरल की और 4 लड़की एक ही जेल में है। तो उसके साथ हमारी संपर्क होता है, हमने वीडियो कॉल में बात करते हैं। उनकी जेल अथॉरिटी, तब तालिबान नहीं आए थे, तो जेल अथॉरिटी हमें बात करने की मौका दिया था। तो ये सारे इकट्ठा करते रहे। जो गीतांजलि आयर को देखी, उसकी पेरेंट्स से मिले, उसकी माँ बाप आज भी उसकी बेटी की जो परपेट्रेटर है उनकी सजा के लिए वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे अपने फिल्म के एंड में देखा होगा, उसकी माँ बोलती है कि मैं तो बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाए, उसकी फोटो एक बार डाल देना आपकी फिल्म में ताकि बाकी लड़कियां बच जाए, उसकी जिंदगी बच जाए। तो इस तरह की पेरेंट्स से मिले, लड़कियों से मिले, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई एक साधारण कन्वर्शन नहीं है, इसमें एक पैटर्न है और इसमें एक बहुत बड़ा साजिश है। ये साजिश का मुझे बहुत सारे मेरी जो दोस्त बाहर है, मुझे सऊदी अरेबिया में कुछ 2 दोस्त है, उन लोगों ने बहुत मदद की इनकी ट्रेल को पता करने के लिए। हम लोग एनआईए के पास गए कुछ केसेस लेके। तो फाइनली 2018 में मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था, उसका नाम था इन द नेम ऑफ लव, मेलंकली ऑफ गॉड्स ओन कंट्री। वो फिल्म लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म की अवार्ड मिला था। लेकिन उस फिल्म की जो पहला शो था, मेरी दोस्त जेएनयू से दोस्त बैठे हुए हैं, बहुत मार पड़े थे हमें जेएनयू में और फिल्म दिखा नहीं पाए थे। तो मुझे बोला गया कि 2019 में इलेक्शन था कि ये फिल्म मत दिखाइए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। मुझे समझ में आज भी नहीं आता है टेररिज्म की बात करना हमारे देश में सेंसिटिव क्यों है। आज भी मुझे किसी ने समझा नहीं पाए, क्योंकि मुकेश जी हमारी फिल्म के लिए जो बातें जो मनोज भाई ने बोला कि ये कभी किसी जगह पे हमने इस्लाम के बारे में कोई बात नहीं की। अभी क्या हुआ,
एक लड़की केरल से मुझे मेरी इंस्टाग्राम और ट्विटर में कंटिन्यूअसली मुझे बहुत गालियां दे रही थी कि आपने हमारी धर्म को अपमान किया, हमारे धर्म के बारे में बात की। और जिस दिन रिलीज हुई उसकी 2 दिन बाद वो लड़की लिखती है कि शी स्टार्टेड हर कमेंट विद भैया, कि भैया आई वांट टू अपोलोजाइज इन पब्लिक दैट यू हैव डन अ ग्रेट सर्विस टू माय रिलीजन, दैट यू हैव शोन हाउ टेररिज्म हैज यूज्ड माय रिलीजन फॉर देयर पर्पस। सो मैटर ऑफ फैक्ट इज, जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी अभी तक, उनको ये फिल्म प्रोपागेंडा, एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम ये सब लगता है। जो लोग फिल्म देख चुके हैं उनको ये क्रिटिसिज्म और मेरे पास अभी नहीं आता। इसलिए अभी सोशल मीडिया में भी हमारी क्रिटिसिज्म पार्ट खत्म हो गए। बाकी था वो 32,000 का नंबर, जो 2 दिन पहले हमने एक वीडियो जारी की जिसमें गिनती से, मतलब एक मेथड ओमान चंडी एक नंबर दिए थे, केरल की ऑफिशियल कन्वर्शन सेंटर से जो नंबर आए, जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ कन्वर्शन सेंटर की नंबर आए, ये सब जोड़ के हमने 32,000 की नंबर की भी वो दे दिए। और ये भी दिए कि 2010 12 जून केरल की चीफ मिनिस्टर थे VS अच्युतानंदन, जो CPM की पेट्रियर्क है। उन्होंने केरल में नहीं दिल्ली में आके बोले थे कि अगले 20 साल में केरला एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक भयंकर, एक भारतीय डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है। शायद आज भी इस कमेंट की मतलब किसी ने समझे नहीं है। 20 साल में केरल जो एजुकेशन में नंबर 1, यूनाइटेड नेशंस की जितने भी पैरामीटर है, ह्यूमन ग्राफिक्स की ह्यूमन पैरामीटर्स है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में नंबर 1, ऐसे स्टेट अगर इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इट्स नॉट ओनली एन अलर्निंग इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो रियली कंसर्निंग इंफॉर्मेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उस समय पे CPM पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे पिनायरी विजयन जी। उन्होंने तहे दिल से VS अच्युतानंदन की कमेंट्स को सपोर्ट किया था। और जब मेरी फिल्म रिलीज हुई, उन्होंने बोला कि हमने फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किए और हमने प्रोपागेंडा फिल्म बनाई। तो मुझे उनके साथ बात करने की मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैंने उनको कैटेगरिकली पूछा। उस दिन जो आपने 12 जून 2010 को जो आपने कमेंट्स किए थे अबाउट द PFI एंड SDPI एक्टिविटी और केरल की इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाने की जो आपने सपोर्ट किए थे ये नोशन को, और आज बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, क्या देश में 13 साल में बदलाव आ गया कि आपकी वर्शन चेंज करना पड़ा? ये उत्तर मुझे मिला नहीं। और मेरा लास्ट पॉइंट है मुकेश जी, मॉरिशस में एक हॉल में हमारी फिल्म चल रहा था। वहां पे ISIS का लेटर, मेल और फोन जाता है कि ये फिल्म अगर और एक शो हो तो वो हॉल की मालिक को मार दिया जाएगा और हॉल को उड़ा दिया जाएगा। सेम थ्रेट लंदन में 2 मॉल में सेम जैसे थ्रेट किया जाता है। हमारी देश में 2 स्टेट में ये फिल्म नहीं दिखाया जाता है। और आप लोगों को सुन के थोड़ा सा मैं एंटरटेनमेंट दे दूं, मेरी एक आंखों का दाम 21 लाख रुपया रखा गया है। जो मेरी आंख निकाल के ले जाएंगे उनको 21 लाख रुपया दिया जाएगा, और मेरी प्रोड्यूसर विपुल शाह को रास्ते में फांसी दिया जाएगा। उसके लिए कितना 10 करोड़ या कुछ कीमत रखा है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो एक इकोसिस्टम है ना, जो मॉरिशस में, लंदन में या हमारे देश में चेन्नई, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में, ये एक मानसिकता है कि फिल्म नहीं देखेंगे हम लोग। जब BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए बहस चल रहा था, महुआ मोइत्र जी सबसे पहले आगे आके बोलते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं देख सकते। तो मुझे हमारी देश की डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा एक खतरा नजर आता है, जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये जो ISIS की जो इंटरनेशनल प्लॉट है, उस प्लॉट को सपोर्ट सिस्टम हमारी पॉलिटिकल सिस्टम से मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी फिल्म अगर इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके, और जो किया है अभी तक, वो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, ये मुझे लगता है। और अभी तक मेरी संख्या में करीबन 2.5 करोड़ लोग इस देश में ये फिल्म देख चुके हैं।
मुझे लगता है 2.5 करोड़ लोग अभी इस देश में ये चैप्टर को और कारपेट के नीचे रहने नहीं देंगे। ये लोग बात करेंगे और ये बात अभी चर्चा में आएगा। ये इसकी अच्छा लगता है ये सोच के कि ये लोगों ने डिसाइड कर चुके हैं। वो हमारी सोशल मीडिया में जो कमेंट्स आता है उससे पता चला है कि लोग काफी अवेयरनेस हो चुके हैं। ये मुझे लगता है ये प्राइमरीली मुझे ये महसूस हुआ। जी हाँ, मुझे याद है कि जेएनयू में 28 अप्रैल 2018 में आपने स्क्रीनिंग की थी और वहां पे आपको शायद थोड़ा फिजिकल असॉल्ट भी किया गया और बैठे हमारे जेएनयू के, मैं भी जेएनयू से ही हूँ। इसकी वजह से मैं बच गया। अच्छा, आपने थैंक यू वेरी मच। तो देखिए ये तो बैकलैश चलेगा। कहते हैं कि सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण है और जो हकीकत नहीं दिखाता, मैं समझता हूँ अपने बिजनेस से बहुत सीरियस कॉम्प्रोमाइज करता है। एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम विपुल शाह एंड सुदीप्तो सेन टू मेक ए फिल्म एंड येट मेक इट्स कमर्शियल सक्सेस। मेरा सर एक और लास्ट आपसे छोटा सवाल यही है कि अभी आपने ये फिल्म बनाई है, क्या आप इसका एक्सटेंशन भी बनाने वाले हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है जो कि जागरूकता को लगातार हमारे देश के अंदर बना रहेगा, नहीं तो पता नहीं कितनी बच्चियां जो हैं इस विक्टिमाइजेशन के प्रोसेस से गुजरे। इसमें इसकी जवाब ये है कि हमें लगा था कि हमने ये फिल्म हमारी देश में एक परमानेंट पोजीशन लेंगे लोगों के दिल में। सिनेमा एक बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है जो, हालांकि मैं ये डेफिनेशन नहीं मानता जो मनोज भाई ने जस्ट इंडिकेट किया था कि एंटरटेनमेंट लोग सपना देखना पसंद करते हैं और हम फिल्म इंडस्ट्री की लोग सपना बेचते हैं। ये डेफिनेशन राज कपूर साहब ने बोला था, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है सिनेमा देश को बदल सकता है। रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, सिनेमा का बहुत बड़ा रोल था। उस समय पे पुदोवस्की फिल्म बनाते थे, आइजनस्टाइन फिल्म बनाते थे। समाज में रशिया में रिवॉल्यूशन तो हो गया था, लेकिन लोगों की मन में रिवॉल्यूशन की मैसेज को पहुंचाने के लिए सिनेमा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साउथ अमेरिका में सिनेमा का एक बहुत बड़ा रोल था। हमारे देश में जो मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक जो सोसाइटी है, इसमें सिनेमा की बहुत बड़ा रोल है। और मुझे ये लगता है कि इस तरह की फिल्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये कुछ साउथ में हे राम या जय भीम या कांतारा जैसे फिल्म एक मेजर रोल प्ले किया है समाज में सोच को एक दिशा देने के लिए। तो हमारी इंडस्ट्री में भी अभी कुछ फिल्म आए हैं और आने वाले हैं। मनोज जी जैसे लोग अगर मदद करेंगे तो और ज्यादा फिल्म मिलेगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन ये फिल्म जो आप लोगों ने जितने तारीफ की हमारी, हमें उसमें अच्छा तो लगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी कर दिए हैं। अभी मैं अगर कोई बात करूं तो उसकी एक सोशल मैसेज जाते हैं, तो मैं इतना जल्दी कोई डिसीजन ले नहीं सकता कि मैं आगे क्या करूंगा। लेकिन ये जो रेडिकलाइजेशन की जो प्रोसेस है, जो लड़कियों में रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है, कुछ हद तक हमने हमारी इस फिल्म में किए हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये मेल रेडिकलाइजेशन क्या होता है, वो बड़े खतरनाक कहानी है। अभी रिसेंटली सिंगापुर में, कोलंबो में, मलेशिया में जो ब्लास्ट हुई है, आईसिस की ब्लास्ट हुई है, सब जगह पे केरल के लोग थे, केरल के लड़के थे। तो ये केरल में जो मेल यंग जनरेशन की जो रेडिकलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है। और इसके बारे में भी लोगों ने हमें बोला है, इसके बारे ये फिल्म भी होना चाहिए। लेकिन केरल मेरा बहुत फेवरेट जगह है, तो बार बार केरल को लेके ये बात करना भी मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। तो अभी तक उस कैथारसिस फेज से गुजर रहे हैं। आज 30 दिन पूरी हुई हमारी फिल्म की रिलीज की। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा खुशी, ये सब मिला के एंजॉय करने दीजिए। मैं जल्दी अनाउंस करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। छोटा सवाल। दादा, मेरा नाम दिनेश पाटपाल है, मैं एक टीवी पत्रकार हूँ। इस पूरी फिल्म की जो सेंट्रल आर्टिस्ट है शालिनी उन्नी कृष्णन, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस फिल्म के रिलीज होने के बाद
शालिनी के केस में कोई फर्क पड़ा है? उसका केस एस्केलेट हुआ है या हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली सिचुएशन बहुत खराब हुई है। मैं उनके टच में था। केरल की 4 लड़की अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर में यूनाइटेड नेशंस की 4 जेल है, उनमें से एक जेल में केरल की 4 लड़की थी। सुषमा स्वराज जी तब फॉरेन मिनिस्टर थे। मैं शालिनी, जिसकी नाम बदल के शालिनी रखा हमने, उसकी माँ को लेके मैं गया था सुषमा जी से मिलने के लिए। उसके बाद होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर थे आहिरे साहब, उनके पास गए थे एक ही दिन में हम लोग। तो सुषमा जी इतनी रोई उनकी माँ के साथ बात करते हुए, तो उन्हीं की एफर्ट से हम लोगों ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया था। और मेरे एक दोस्त तो चाबाद पोर्ट में काम करते थे, तो उसने गया था उस जेल में, तो हमें वीडियो कॉल में 2-3 बार हमारी बात हुई थी। लेकिन तालिबान आने के बाद उस जेल का क्या सिचुएशन है, हमें पता चला कि वो जेल को खोल दिए हैं इन लोगों ने। तो उस जेल में कम से कम एक जेल में कम से कम 600 से 800 लड़कियां थी। वो लड़कियां अभी कहाँ हैं? हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट किया था केरल की 4 लड़की के साथ, लेकिन उसके बाद अभी कोई पता नहीं है वो लड़कियां कहाँ हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रहे हैं वो चारों लड़की से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि तालिबान के साथ अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारी बनी नहीं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम कुछ कर पाएंगे। बहुत खुशी होगी अगर इन चारों लड़की को हम वापस लेके आ पाए। मनोज तिवारी जी, आप प्रश्न करना चाह रहे थे, तो क्योंकि आपके समय का थोड़ा सा अभाव है, तो आप अपना प्रश्न करके फिर इस कार्यक्रम को हम दूसरी दिशा में ले जाएंगे। भाई को जवाब मिल गया है। देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ प्लीज, कुमार राकेश जी एक बहुत बड़े लेजेंडरी पत्रकार हैं, और फिल्म देखी और आंदोलन बन चुकी है, इसमें कोई दो बात नहीं। वैश्विक आंदोलन है, राष्ट्र भाई से लेकर के स्टोरी तक। मुद्दा सुनिश्चितता ये है कि आपकी पूरी फिल्म में लास्ट कानून के जो पक्ष थे, पिछले 9 वर्षों में 18,000 कानून को निरस्त किया गया इस सरकार ने आकर के, जो कि पब्लिक को लावजह परेशान किया करते। उसी के तहत कानून के पक्ष को आपने बहुत ही मतलब लगता है वो इस्लाम जो फील किया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस्लाम को ना टच करने की बात के परिप्रेक्ष्य में या कुछ सच्चाहट ऐसी रही, या आपने उसको उस तरह से प्रहार नहीं किया, चाहे स्थानीय कानून है या केंद्र का कानून बनाया कानून। कन्वर्जन को लेकर हर एक इससे अलग अलग कानून है, और कन्वर्जन के कानून को रोक करके देश की एक महिला राष्ट्रपति बन गई थी, जिनका देवी पाटिल। वो मैंने उसको लिखा था कि रोम के उनको पोप ने उनको सराहा था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उस अवार्ड को मिला। उस परिप्रेक्ष्य में आपसे कह रहा हूँ कि जो कानून के पास जाता है वो पुलिस वाला है, देरी मानता है। एक दूसरा दिखाते हैं कि वो दोनों लड़के विद्या के साथ में देखते गया था फिल्म, वो दोनों जो लड़का कोई ट्रैवल एजेंसी चला रहा है और दूसरा जो पिज्जा की दुकान चला रहा है, तो कितना तमाचा है केरल के कानून पे और भारत सरकार के कानून पे। आपने बहुत प्रयास किया, समाज प्रयास किया, इस कानून के पक्ष को भी आपको लगता नहीं हाथ होना चाहिए? नहीं, मुझे ना मैं आपको बताऊं, मुझे NIA में मैं गया था वो शालिनी उन्नीकृष्णन की केस को लेके, और मेरे साथ केरल से एक सोशल लीडर थे। ये बहुत बड़ा मेरे पास आज भी सवाल है कि वो लड़का शालिनी की माँ को ऐसे ऐसे व्हाट्सएप में मैसेज भेजा है, वो मैसेज का कॉपी आप देखेंगे ना, आपको तज्जुब होगा। धमकी देते हैं कि भारत की, केरल का पुलिस क्या, भारत की कोई पुलिस नहीं है मुझे रोक सके, कुछ करना है तो करके दिखा दे। मतलब इस तरह की धमकी कि उसकी माँ प्रेस के साथ बात करते थे, उसकी माँ बार बार सरकार के पास गए तो उस माँ को धमकी मिलती थी उस लड़के की तरफ से। वो लड़का को आज तक
ना केरल पुलिस, ना एनआई, किसी ने वो नहीं किया। मतलब अरेस्ट करना तो दूर की बात है, डिटेन तक भी नहीं। ये आपने ये बात हमने फिल्म की एंड में कुछ की है। दूसरी बात ये है कि कन्वर्शन को लेके जो डिबेट है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं, साउथ एशिया में, साउथ अमेरिका में भी बहुत सारे डिस्कशन हुई, अफ्रीका में बहुत सारे डिस्कशन हुई। एक इंटरनेशनल एक सहमत बनाने की कोशिश जारी है। जैसे मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि कन्वर्शन बैन होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी फिल्म की ओपिनियन नहीं है। मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे लगता है कन्वर्शन, जो चीज मेरा नहीं है, मुझे इनहेरिटेंस में मिलता है, उसको बदलने की राइट मेरे पास नहीं है। ये एक अलग डिबेट हो सकता है, मैं उस डिबेट पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन ये जो मैनिपुलेटिव कन्वर्शन है ना, जो कन्वर्शन आपस में होता है, उसमें लव शब्द जहां पे होता है, वहां पे कन्वर्शन की क्या जरूरत है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और कन्वर्शन जो होता है तो लड़कियों की होता है, लड़के कभी कन्वर्ट नहीं करता है, इसकी जवाब मुझे कभी नहीं मिला। और तीसरा, कन्वर्शन, फोर्स्ड कन्वर्शन बहुत कम होता है, एटलीस्ट मतलब मीडिया और लोगों की आंखों के सामने। वो छोटे शहरों में या गलियों में होता होगा फोर्स्ड कन्वर्शन। मेरी फिल्म ना विलफुल कन्वर्शन के ऊपर है, मेरी फिल्म ना फोर्स्ड कन्वर्शन के ऊपर है, मेरी फिल्म है मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की। वो बहुत बड़ा थ्रेट है, वो दुनिया भर की थ्रेट है, जो हजारों की तादाद में लड़कियां आईसिस में ज्वाइन की है। और अभी इसी वक्त 62,000 लड़की ये सीरिया, यमन और इराक में अलग अलग कैंप में है। एक के पास 2, 3, 4 बच्चे हैं। उनको उसकी जो ओरिजिनल देश है वो देश वापस नहीं लेते हैं। वो लड़कियां कहां जाएगी किसी को मालूम नहीं, कैसे जिएगी, कौन नेक्स्ट खाना देगा वो मालूम नहीं। तो मेरी फिल्म उसके ऊपर है। तो इसके मुझे मालूम नहीं कि इसके ऊपर कानून बनाना पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन ये बात तो सही है कि ये कानून की दायरा डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। और सबसे ऊपर है जो मुझे सच्चिदानंद जी और तरुण विजय जी और मनोज जी जो लोग लॉ मेकर्स है, इस देश की एजुकेशन सिस्टम को ऐसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि कोई शालिनी को ये जवाब देना कि श्री राम को क्यों वानर सेना को जरूरत था सीता जी को लेके वापस ले आने के लिए, इसकी जवाब अगर छोटे बच्चे को नहीं हो तो एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है। तो ये मनोज जी, सच्चिदानंद जी के लिए ये फिल्म था कि ये लोग कुछ करें, हमारी एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाए ताकि बच्चे ये जवाब दे पाए कि गणेश जी की फेस हनुमान एलिफेंट गॉड क्यों है, हमारी गॉड हमारी हनुमान क्यों बात कैसे कर सकते हैं। ये सारे सवालों की जवाब अगर दे तो ये मैनिपुलेटिव कन्वर्शन बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। और सुदीप्त सेन के लिए बहुत जोरदार तालियां, इतना स्पष्ट उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो ये लोग दुनिया बदलने के लिए आए हैं। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डॉक्टर निर्मल गहलोत जी, जो कि रेस्पेक्ट इंडिया के फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और मनीष चौधरी जी, उनको सुदीप्त सेन को शॉल मनोज जी आप मनोज जी वो देंगे ना। अब मैं मनीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मनोज जी का स्वागत करें। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है शॉल से। और
निर्मल गहलोत जी भी इसमें शरीक हो। मैं समझता हूँ हम सभी लोग इनको एक शॉल अर्पण करते हैं ताकि ये 40 शोज जल्दी करें हम लोग। अब नाउ सिंस वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम आई वुड रिक्वेस्ट मैं अब जो यहाँ के चीफ गेस्ट हैं हमारे, उनका स्वागत होने के बाद अब मैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस की भी रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर श्री सच्चिदानंद जोशी जी जो ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी IGNC के हैं उनको फेसिलिटेट करें। निर्मल जी आप ही देखिए। मनीष चौधरी इज द मूवर एंड शेकर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मनीष के लिए भी जोरदार तालियां हैं। मनीष हैज डन इनक्रेडिबल जॉब बाय इनवाइटिंग। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब मैं प्लीज वेट, आई थिंक वी हैव गॉट वेरी एनलाइटेंड पर्सनैलिटी बाय प्रेसिडेंशियल एड्रेस बाय डॉक्टर श्री सच्चिदानंद जोशी। एक और शॉल बहुत सारी आ गई, गर्मियों का टाइम है, ये देखिए। धन्यवाद। एक शॉल में मनीष जी को। हाँ, आज एक बहुत अच्छा पवन दिन है हमारा। हमारे बीच में अमरेंद्र खटवा जी हैं जो कि फॉर्मर IFS रह चुके हैं, तमाम कंट्रीज में राजदूत रह चुके हैं। आज उनका, और ही वॉज ऑल्सो ए फॉर्मर DG ऑफ ICCR, I think culturally extremely enlightened, and we are very lucky on this program. We are going to celebrate his birthday. Happy birthday to you, Mr. Khattar. And please आइए please. I think he's represented India in many countries, and he's very fit and fit. So. अब मैं आज के संचालक श्री मुकेश त्यागी जी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत करें। अब मैं इस कार्यक्रम के यह समापन की ओर कार्यक्रम है। अब मैं अध्यक्ष वक्तव्य के लिए आदरणीय श्री सच्चिदानंद जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री सच्चिदानंद जोशी। मित्रों, समय बहुत हुआ है और मुझे लगता है कि भोजन के लिए सब लोग जाना भी चाहेंगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा देर अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं रिस्पेक्ट इंडिया को बधाई देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। मुझे लगता है एक बार बहुत जोरदार तालियां हम सब लोग रिस्पेक्ट इंडिया के लिए बजा सकते हैं। निर्मल गहलोत जी, मनीष चौधरी जी जिन्होंने प्रयास पूर्वक हम सबको यहाँ इकट्ठा किया कि हम इस फिल्म के बारे में बात कर सकें। और सबसे ज्यादा बधाई मेरे मित्र सुदीप्तो सेन जी को जिन्होंने इतनी शानदार फिल्म बनाई केरल स्टोरी। और जब इसका एक प्रदर्शन यहाँ दिल्ली में हो रहा था तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि उसका प्रदर्शन IGNC के ऑडिटोरियम में हो, कुछ स्पेशल शो कुछ लोगों के लिए। तो उस शो में भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी मेरे ख्याल से, और शायद वो सारी बातें वहां से शुरू हुई। और सुदीप्तो जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है, इसलिए मैं जानता हूं कि जब वो कोई काम करते हैं तो कितनी शिद्दत से करते हैं, कितनी लगन से करते हैं, कितनी मेहनत से करते हैं। उनके साथ 2 प्रोजेक्ट करने का मौका मिला है मुझे,
और आपको परेशान करने की हद तक वो बहुत शिद्दत से काम करते हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। तो कई बार तो हम लोग कहते थे कि अरे दादा ठीक है यार, इतना सिंसियर होने की क्या जरूरत है, पर वो बहुत ज्यादा सिंसियर है और उनकी सिंसियरिटी ही इस बात की गवाह है कि आज उन्होंने केरल स्टोरी जैसी एक बहुत ही विचारोत्तेजक फिल्म बनाई है। फिल्में अक्सर बनती हैं जैसे उसका एक उद्देश्य रहता है कि उसका मनोरंजन हो, खालिस मनोरंजन हो, और या फिर फिल्म ऐसी कि उसके साथ आप साथ में क्या लेकर जा रहे हैं ये भी सोचने की बात होती है। जैसे केरल स्टोरी है तो आप साथ में अपने क्या लेकर जा रहे हैं, या सिर्फ फिल्म देख के आ रहे हैं, 3-3.5 घंटे का मनोरंजन करके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 3.25-3.5 घंटे की एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था पठान। 3.5-4 घंटे बिताने के बाद आपको अपने ऊपर इतनी कोफ्त होती है कि आपने ये इतना सब खटरा क्यों किया, मतलब आपको कपड़े फाड़ने की इच्छा होती है। और ऐसा लगता है कि क्योंकि आजकल का दिन जो है, और हमने सुना कि वो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म हो गई, तो ये भी एक समाज के मानदंड है जिसको कहीं ना कहीं देखना समझना पड़ता है। केरल स्टोरी के बारे में मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ जो इन्होंने भी कही है। वो हमारे लिए कीवर्ड्स हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। एक कीवर्ड है इंडोक्ट्रिनेशन, तो आप उसको ध्यान में रखिए, और दूसरा कीवर्ड है मैनिपुलेटिव कन्वर्शन। कन्वर्शन तो बुरा है ही, कन्वर्शन तो निश्चित तौर पर बुरा है, लेकिन ये जो मैनिपुलेटिव कन्वर्जन है ये बहुत ही बुरा है, और उस पर कहीं ना कहीं हम सबकी नजर होनी चाहिए। और नजर होनी चाहिए का मतलब क्या है, ये सब बुद्धिजीवी समाज यहाँ पर बैठा है, सारे बहुत पढ़े लिखे ज़हीन लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारा बच्चा या बच्ची क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे घर में कोई खोज खबर होती है या नहीं होती है, इसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रगति के नाम पर हम बच्चों को ऐसी छूट दे दें या बच्चों से बात करने का हमारा अवसर ही गंवा दें। आजकल माता पिता का बच्चों के साथ संवाद ही नहीं होता। अगर बच्चे किसी परेशानी में उलझ जाते हैं तो माता पिता उनके साथ कभी बात ही नहीं कर पाते। अगर आप बात करेंगे तो परेशानी जब शुरू हो रही है तभी शायद आपको मालूम पड़ जाए और ये चीज इतनी दूर तक ना जाए। ये फिल्म किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी मत के खिलाफ नहीं है। ये फिल्म उन लोगों के खिलाफ है जो पहला फुसलाकर जबरिया किसी खास उद्देश्य से बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये किसी भी धर्म पे लागू हो सकती है, किसी भी पंथ पे लागू हो सकती है। इसलिए आतंकवाद चाहे वो किसी भी धर्म द्वारा किसी भी धर्म के लिए किया गया हो, वो बुरा ही है और उसका धिक्कार किया जाना चाहिए। उग्रवाद भी इसी तरह की बात है। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस एरिया का, जिस जगह का ये जिक्र कर रहे हैं वो है कासरगोड, नॉर्थ केरल। मुझे पिछले 5-6 साल में कासरगोड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के कारण कई बार वहां जाने का मौका मिला, और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वो जो उस पूरे नॉर्थ केरल की जो इकोनॉमी है वो एक बहुत बुरी तरह से अलग तरह के लोगों के गिरफ्त में, और उसको समझने की जरूरत है। वहां के 70-75% लोग गल्फ में जाकर पैसा कमाते हैं, और गल्फ में जाकर पैसा कमाकर वो सारा पैसा वहां कासरगोड के उस पिछड़े इलाके में लगाते हैं। मुझे नहीं मालूम इस हॉल में से कितने लोग होंगे जिन्होंने वस्तुतः कासरगोड के बारे में कभी जाना या समझा होगा। हम सब लोग केरल में कोची जानते हैं, त्रिवेंद्रम जानते हैं, केरल की बहुत खूबसूरत जगह जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो जानते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि केरल की 24 जिलों में से 22 जिलों में समुद्र तट लगता है। इसलिए सिर्फ 2 या 4 जिलों को जानने समझने की जरूरत नहीं है। आप कासरगोड के बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी जो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो दरअसल इस तरह की हरकतों के लिए प्रेरित करती है। तो एक और बात हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जो बुद्धिजीवी समाज है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घर में जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके बारे में भी सवाल उठाने की हिम्मत आपके बच्चों में भी होनी चाहिए। इस हिम्मत को अपने बच्चों में पैदा कीजिए। वो वैल्यू सिस्टम अपने बच्चों में पैदा कीजिए। अगर आप वो वैल्यू सिस्टम अपने बच्चों, सिर्फ आपके बच्चे को आईफोन 14 चाहिए इसलिए आप धड़ से आईफोन 14 ला के दे दें, और अगर आपका बच्चा आपसे ये सवाल न पूछे कि पापा मम्मी आपने ये आईफोन 14 इतना महंगा अचानक कहां से और कैसे ला दिया, तो मुझे लगता है कि घर के संस्कारों में कहीं न कहीं खोट है, तो उसे भी दुरुस्त करने की जरूरत है। ये फिल्म सिर्फ इसलिए सिर्फ केरल की दास्तान नहीं कहती,
ये भारत के हर परिवार की दास्तान कहती है, इसलिए हर परिवार को सजग होने का समय है। और मुझे लगता है कि इसके लिए सुदीप्त सेन जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए। थैंक यू। I'm very lucky today. My wife is here, Suman Subodh Agarwal ji from London, Tribhuvan ji himself here. Thank you very much for all of you. But now I would request Gehlot ji to give a vote of thanks, Manish ji to give a vote of thanks, and Manish ji के लिए बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि मैं समझता हूँ इन्होंने कितने कम समय में इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। सबसे बड़ा थैंक्स मैं समझता हूँ मनीष जी को हम आपको देते हैं। मनीष जी प्लीज। नमस्कार। मैं द केरला स्टोरी फिल्म की सार्थकता और सफलता को आप सभी के साथ साझा करते हुए अत्यंत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ अग्रश्री सुदीप्तो सेनदा का, जिन्होंने एक ऐसे विषय को जनमानस के बीच रखा जिस पर लगभग चुप्पी की स्थिति थी। मुखर होना और अपने चेतना को, अपने स्वतंत्र को बनाए रखना जरूरी ही नहीं, अनिवार्य भी है। यह फिल्म अंदर तक झकझोरती है, चैतन्य करती है और भविष्य को दृष्टि संपन्न बनाती है। अंतर्मन से बहुत बहुत आभार सुदीप्तो का, जिनकी स्नेहिल उपस्थिति सदैव रिस्पेक्ट इंडिया को ऊर्जित करता रहा है, जिनका विमल व्यक्तित्व अतीब लोकप्रियता का पर्याय है। ऐसे भोजपुरी सिनेमा के अमिताभ बच्चन श्री मनोज भैया तिवारी को मैं कृतज्ञ मन से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कला एवं संस्कृति के विशद विमर्श का कुशल प्रशासक, साहित्य मर्मज्ञ, हम सबों के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी के प्रति निःशब्द आपकी उपस्थिति सदैव हमें उत्साहित करती है। अंतर्मन से आभार। वरिष्ठ पत्रकार, गंभीर फिल्म समीक्षक, कला एवं साहित्य के आधिकारिक विद्वान अग्रश्री अनंत विजय जी के प्रति विनम्र साधुवाद। आपका कुशल मार्गदर्शन एवं सानिध्य हमारा सौभाग्य है। चर्चित फिल्म अभिनेता, फिल्म के गंभीर अध्येता, कला और संस्कृति के संवाहक हमारे मुकेश भैया, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए संतोषप्रद रहती है कि उनके आने से मैं बहुत सारी चीजों से निश्चिंत हो जाता हूँ। मैं उनके प्रति भी अपना विनम्र धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रिस्पेक्ट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रसिद्ध शिक्षाविद, निर्दोष समाज सेवी और हमारे आत्मीय मित्र निर्मल जी गहलोत के बिना किसी कार्यक्रम की परिकल्पना मेरे लिए संभव नहीं है। आपका सानिध्य और साक्षर हमारी उपलब्धि है। हृदयतल से धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, उसके लिए श्री आलोक रंजन, निदेशक एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली का भी मैं कृतज्ञ मन से आभार व्यक्त करता हूँ। रिस्पेक्ट इंडिया के कार्यकारी सदस्य श्री गुरुदत्त रंगा जी के प्रति भी सादर साधुवाद। मैं बहुत आभारी हूँ रिस्पेक्ट इंडिया के सभी वरीय सदस्यों का और अपने इस विद्वान उपस्थित श्रोताओं का, जिनके उपस्थिति के बगैर इस कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मैं मीडिया कर्मियों का, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सभी कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित है श्री अनूप मित्तल सर, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अमेरिका से विशेष रूप से चल के आए श्री राहुल जी, अपने श्रीमती और श्री राहुल जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री नितिन मल्लिक सर, रजिस्ट्रार अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और तमाम ऐसे लोग जिनकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती है, श्री अमरेंद्र खटवा, श्री कुणाल सिंह, श्री चंद्रशेखर राय, सुनील सर, राजकुमार जी, राकेश भैया, भोपाल सिंह बरला, संजीव जी, उपासना तिवारी, मालविका मैडम, सुरेश जैन, दीपक सिंह जी। हमारे बीच सिनी इंटरप्राइजेस की ऑनर श्रीमती नीतू सिंह उपस्थित है। मैं आप सभी के प्रति अपना कृतज्ञ साधुवाद अर्पित करता हूं। धन्यवाद। और मैं आप सभी को भोजन पे आमंत्रित करता हूं।